just 2-3 more minutes. Binabin, can you please make your audio on? Hello, Binabin. So just in 2 minutes, we are going to start our session. One more minute to go. So let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, Alina Doshi welcome you all on the 96th program from the platform of Let's Grow Together. सजदा अदा न कर सका, इस बात का गम नहीं. सजदा अदा न कर सका, इस बात का गम नहीं. खुशी से झूमना भी दोस्तों, खुदा की इबादत से कम नहीं. जब शरीर और आत्मा का मिलन होता है, तब एक खूबसूरत नृत्य का सृजन होता है. दोस्तों, नृत्य आत्मा की छिपी हुई भाषा है. नृत्य तो कला है, वरदान है, पर समझता समाज इसको सिर्फ नाच है. नृत्य तो वह भक्ति है जिसमें लीन होने के पश्चात आप नृत्य के सिवाय और कुछ नहीं जानते. वैसे तो डांस इंसानी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. डांस एक माध्यम है सोशल इंटरेक्शन और पब्लिक बॉन्डिंग का, जिसे फॉक, सेलिब्रेशन, रिचुअल्स और सेरेमनीज में किया जाता है. जैसे बारिश होने पर, फसल की कटाई पर, जन्मदिन पर, शादी समारोह में और भी कई ओकेजन्स पर. त्योहारों में भी मंदिरों में डांस करने की परंपरा होने लगी. लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी डांस किया करते और लव मेकिंग के लिए भी. इसमें गुरु शिष्य परंपरा दाखिल हुई और गुरु अपने शिष्य को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी डांस सिखाने लगे. अगर हम इंडियन डांस की बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार डांस हैव बीन इन्वेंटेड बाय गॉड
As we all very well known about Shiv Tandava, Kali's dance of creation and destruction, and Krishna's dance of Ras Leela with Gopikas. ऐसी मान्यता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने डांस, ड्रामा और म्यूजिक को प्रैक्टिस करने के लिए ऋषि भरत मुनि को इलोबरेट कोडिफाइड गाइड तैयार करने के लिए इंस्पायर किया था, जिसे भरत मुनि ने 2nd सेंचुरी एडी से लेके 4th सेंचुरी के बीच में लिखा था, जो नाट्य शास्त्र और नाट्य वेदा कहा गया है और इसे 5th वेदा भी कहा गया है। भरत मुनि को फादर ऑफ इंडियन थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म माना गया है, जिन्होंने नाट्य शास्त्र को तैयार करने के लिए चारों वेदों की मदद ली। ऋग्वेद से पठन यानी कि वर्ड्स लिए, यजुर्वेद से अभिनय यानी कि जेस्चर्स लिए, सामवेद से गीत यानी कि म्यूजिक और अथर्ववेद से भाव यानी कि इमोशंस। इन सब को लेकर नाट्यवेद तैयार किया गया। इंडियन क्लासिकल डांस इस नाट्य शास्त्र की ही मॉडर्न इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। आज हम इंडियन क्लासिकल डांस और सूफी डांस के बारे में बहुत विस्तार से सब जानेंगे, जो कि हमारे बीच हमारी भारतीय संस्कृति और कल्चर की पहचान है। इसे विस्तार से बताने हेतु हमारे बीच एक बहुत ही वेल नोन एंड वर्सेटाइल क्लासिकल डांसर मौजूद है। आइए मैं उनका थोड़ा सा परिचय दूं। Mrs. Beena Mehta is a renowned versatile classical dancer and choreographer of Gujarat. She is a disciple of late Shri Mrinalini Sarabhai, late Shri Acharyulu Guru, and Shri Radha Menon, and mastered classical dances like Bharatnatyam and Kuchipudi. After many performances in various dance festivals and renowned places in India and abroad, she opened her training institute Nayan Ramya in 1988. She is the patron and creator of Sufi classical dance form in India and abroad. Along with her students, she performed and choreographed many memorable dance concerts like Lagnotsava, Madhurika, Savre, Ore Sakhi, and recently Krishnamayi. Each one of that has its own unique rhythm, colors, techniques, moods, and emotion connections. She has performed on a very prestigious platform in India and abroad many a times since 1989. She was the only artist who welcomed our Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi and Chinese President Mr. Xi Jinping as a part of Vibrant Gujarat in 2014 September. She was invited to Rashtrapati Bhavan, Delhi for Indradhanush Festival as a part of Gujarat Gaurav Puraskar awardee in 2015. Performed at Adalajni Vav on World Heritage Week, performed a patriotic song Hindustan Meri Jaan, sung by Shankaran Madhavan, performed at Modhera Sun Temple, Ore Sakhi Sufi classical dance at 18th National Conference, also performed Sufi classical dance on Panch Mahabhut on the World Environment Day. Also performed Krishnamayi for Sabarmati Festival and also at Dwarka Gomti Ghat. Performed Krishnamayi in opening ceremony at International Gita Mahotsav in 2018, Kurukshetra, India. Her recently recorded performance of Krishnamayi was telecast on DD National on 1st July 2019. Honored to be a part of Ashish Mohan Kohukar's publication Attendance, and also honored to be a part of Femina Ahmedabad Most Powerful 2020, and also honored to share her story and journey of dance in Journal of Indian Dance. She has won the plenty of prestigious award, but if I name a few, they are Gujarat Gaurav Puraskar, Swayam Siddhi Award, Glorious Gujarat Award in New Jersey, USA, Daughter of Gujarat Award, Gaurav Gujarinar Award,
Times Power Woman Award, Sambhava Woman of Excellence Award, and the list is really, really very long. She has performed with Shri Amitabh Bachchan as a part of Gujarat Mahotsav in 1986. Apart from various forms of dances like Indian classical, Indian folk, and Sufi, she has also successfully performed memorable role of Radha, Saraswati, Satyabhama, Tulsi, Meera, Rukmani, Padmavati, Gopi, Yashoda, Devaki, and Draupadi. Friends, believe me, her biodata can become a small booklet. She has achieved a lot in her life and performed at many, many places at many, many occasions in India and abroad. So, dear friends and family, with a great pride and joy, I am inviting a great classical dancer, Mrs. Bina Parikh Mehta. बीना जी, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू मैम. Thank you so much, Leena Ben, for inviting me on your platform, and everyone for giving your time and presence. Thank you so much. Leena Ben, તમે જે એક્ટિવિટી કરો છો ને એ તો બહુ જ સુંદર એક્ટિવિટી છે કે તમે આટલા બધા સ્પીકર્સ ને આટલું બધું નોલેજ બધાની જોડે શેર કરો છો. I am so thankful and privileged to be part of your Let's Get Together, and thank you so much. Thank you. Yes, Binaben, થોડુંક અમને મ્યુઝિક વિશે બેસિક માહિતી આપશો? આપણે સૂફી ક્લાસિકલ ડાન્સની વાત કરીએ છીએ, રાઈટ? જી હા. સૂફી ક્લાસિકલ ડાન્સ હું પોતે 7 વર્ષની હતી ત્યારથી ડાન્સ શીખું છું. બેઝિકલી માય ફાધર ઇઝ હાર્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ કન્સલ્ટન્ટ ફિઝિશિયન ડોક્ટર કેબી પરીખ. મારા પેરેન્ટ્સ યુએસ રહેતા હતા અને એમને એવું થયું કે ના, અમારી બાળકોને તો ઇન્ડિયન કલ્ચર આપવું જ છે. એક સાથે 10 કપલ પાછા શિફ્ટ થયા ઇન્ડિયા અને એ વખતે હું આર્ટિસ્ટિક સ્કેટિંગ કરતી હતી. તો એ છોડીને આખું મારું કેરેક્ટર જ જુદું હતું. પણ ફાધર સેડ કે ના, મને તો ડાન્સ કરતી ને મ્યુઝિક શીખતી હોય એવી મારી દીકરી જોઈએ. અને મેં દર્પણમાં ભરતનાટ્યમ શીખવાનું ચાલુ કર્યું. બેઝિકલી મેં ભરતનાટ્યમ ને કુચીપુડીમાં 2 ક્લાસિકલ ડાન્સમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે. મારા ગુરુ શ્રી મૃણાલિની સારાભાઈ અમ્મા, એમની પાસે ભરતનાટ્યમ કર્યું. ત્યાં જ ભરતનાટ્યમમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું અને સીઆર આચાર્યલુ ગુરુ પાસે મેં કુચીપુડી કર્યું. અને જ્યારે ગુરુજી દેવ થઈ ગયા ત્યારે પછી આગળ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ને દાદા મેનનજી પાસે કર્યું. મારા દરેક ગુરુઓ પાસે હું બહુ જ સરસ શીખી છું કે જે કહે છે ને કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, એટલે ક્લાસિકલ ડાન્સમાં ગુરુના જે વર્ડ્સ હોય ને, ઇટ્સ લાઈક અ ગોડ, ફાઇનલ વર્ડ્સ. નો વન ડુ આર્ગ્યુમેન્ટ ઓર ક્વેશ્ચન માર્ક. જસ્ટ ગુરુએ જે કીધું એ ફાઇનલ. અને એમાં એટલી બધી મજા આવતી શીખવાની, કારણ કે શરૂઆતમાં નો ડાઉટ બહુ જ અઘરું લાગતું હતું. દર્પણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જે ગુરુઓ હતા, રામસ્વામી સર, ચાતુમી પાનીકર સર, બધા બહુ જ સ્ટ્રિક્ટ હતા. દે આર ફ્રોમ સાઉથ ઇન્ડિયા. અને એ વખતે થોડું અઘરું લાગતું હતું, પણ જેમ જેમ શીખતા ગયા, જેમ જેમ કરતી ગઈ એમ બહુ જ મજા આવી. પછી મેં મોહિનીઅટ્ટમ, ઓડિસી અને કથકની પણ વર્કશોપ્સ કરી. કથકની વર્કશોપ્સ મેં બિરજુ મહારાજ પાસે ઘણી જ કરી, મહારાજજી પાસે. અને જ્યારે જ્યારે હું આરંગેત્રી જોવા જાઉં ને કોઈ દીકરીનું, કે કોઈ સગા હોય કે કોઈ ફ્રેન્ડની ડોટર હોય, ત્યારે ચીફ ગેસ્ટ હોઉં અને ત્યારે હું જોઉં કે આપણા ત્યાં ઓડિયન્સને આ ક્યારે પતશે, ક્યારે જમવાનું ચાલુ થશે. હવે જે દીકરીએ આરંગેત્રી કર્યું હોય ને એને કેટલી બધી બર્થડે પાર્ટીઝ, કેટલા બધા મૂવીઝ, સોશિયલ ગેધરિંગ, કેટલું બધું એને ડ્રોપ કર્યું હોય ને ત્યારે એ આરંગેત્રી સુધી પહોંચી ગઈ. અને 7 વર્ષ, અમુક ગુરુ તો 11 વર્ષે આરંગેત્રી કરાવે છે. તો એને એટલી બધી મહેનત કરી હોય
પછી મને એવું થાય કે ના, આને તો સમાજમાં રેકગ્નાઇઝેશન ને એપ્રિસિએશન મળવું જ જોઈએ. તો જે આર્ગિકલ કર્યું હોય સ્ટુડન્ટ, એના ગુરુઝ અને પેરેન્ટ્સને જ આમ વાવ ફેક્ટર થાય. બાકી બધાને થાય કે જલ્દી જલ્દી પતે તો સારું. તો એ મેં માર્ક કર્યું કે ધીસ વોઝ બીકોઝ ઓફ લેંગ્વેજ. તો મને થયું કે ડાન્સ વોઝ નેવર અ અર્નિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફોર મી. સો મારી પાસે નવા નવા એક્સપેરિમેન્ટ હું બહુ જ કરતી રહી, અને એ વખતે મેં સૂફી ક્લાસિકલ ડાન્સનું સર્જન કર્યું. Sufi classical is amalgamation of 5 classical dances: Bharatanatyam, Kuchipudi, Mohiniyattam, Odissi and Kathak. અને એ સ્ટાઇલમાં એવી રીતે લીધું કે આ બધી જ સ્ટાઇલની જે જોઈને વ્યુઅર્સને મજા આવે ને એવી સ્ટાઇલ લીધી, અને એને ભાષા આપણા શાસ્ત્રીય સંગીતની ઇન્ડિયન, બરાબર. તો એ લોકોએ એટલું બધું સરસ એક્સેપ્ટ કર્યું. મેં બહુ જ બધા કન્ટ્રીઝમાં પરફોર્મ કર્યું, યુએસ પરફોર્મ કર્યું, અહીંયા પણ 2012 થી મારા બહુ જ બધા શો થયા, અને આઈ રિયલી એન્જોયડ અ લોટ એન્ડ પીપલ એપ્રિશિએટ ઇટ. પણ બીજી એક વસ્તુ છે કે ફોર મી ડાન્સ ઇઝ અ નેવર an entertainment or an exercise or performance. Dance is a life. It's our life. Why? Because through dance we go through our eternal God. It's a prayer to God. So ખાસ એ વસ્તુ બહુ જ મગજમાં રહી, અને આ સ્ટેજે પહોંચવા બદલ ખાસ મારા ગુરુઓ જેમની પાસેથી મેં આ શીખી છું એમના માટે કે ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુદેવો મહેશ્વરા, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. કારણ કે મા બાપ તો જન્મ આપે છે, એમના જેવો કલર, એમનો દેખાવ, એમના ડીએનએ, એમનું એજ્યુકેશન આપે, એમની પ્રોપર્ટી આપે, પણ ખરું કાર્વિંગ તો ગુરુ જ કરે છે. સો આઈ એમ સો થેન્કફુલ ટુ માય ગુરુઝ, પેરેન્ટ્સ, ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ઓફકોર્સ માય સ્ટુડન્ટ્સ. એ લોકો સાથેની મારી જર્ની પણ એટલી સુંદર રહી છે, અને I enjoyed my life through my dance also. And thank you very much again for giving the time to me, Leena Ben. हमारे जैसे डॉक्टर्स में ऐसा माना गया है कि डॉक्टर का बच्चा होता है तो यूजुअली डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, काफी सारी प्रोफेशन में ऐसे है. तो आपका कोई ऐसे फैमिली बैकग्राउंड डांस वाला है क्या? नहीं, माय फादर इज हार्ट स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट फिजिशियन, एंड पूरा फैमिली का साइंटिफिक बैकग्राउंड है. माय 2 cousins are PhD in chemistry, gold medalist, and my again one cousin is a doctor. But my father always felt that do whatever you love. So he gave privilege to me कि enjoy your life. मैंने BSc microbiology किया है, and then I want to go for cancer research, and the same time I have to go for International Folk Dance Festival in Cairo. So I was going to represent India in that with 40 countries. But my father helped me a lot, my parents especially, they helped me a lot, and now I felt that really it helps me, because dance is not only a dancing, it's a one kind of exercise, meditation, relaxation, and it's very good for mental and physical health both. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. हमें थोड़ा भारतीय क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें, और आपने कौन कौन से डांस सीखे हैं अपनी लाइफ में? मैंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी बोथ आर साउथ इंडियन क्लासिकल डांसेस, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. एंड हमारे भारतवर्ष में 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली एंड मोहिनीअट्टम, ये 4 जो है वो साउथ इंडिया से है. फिर वेस्ट इंडिया से है ओडिसी, मणिपुरी एंड सत्रिया.
एंड कथक इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. सो इतने हमारे क्लासिकल डांसेस हैं. बेसिकली हर एक क्लासिकल डांस के स्पेसिफिकेशन होते हैं. जैसे भरतनाट्यम कुचिपुड़ी में जो उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो मृदंगम है, वायोलिन है, कथकली है. और फिर पार्डन नहीं, बीच में किसी की आवाज आ रही, मैं म्यूट करती जा रही हूँ. अच्छा. कथक में पखावज यूज होता है, सितार यूज होता है और तबला यूज होता है. और हर एक के कॉस्ट्यूम्स की बहुत अलग अलग है. जैसे भरतनाट्यम कुचिपुड़ी जो साउथ के कॉस्ट्यूम्स है उसमें उसका जो कांजीवरम साड़ीज में से होता है. कथक का जो कॉस्ट्यूम है इट्स लाइक अवर अनारकलीज. And in my Sufi classical dance form, my costumes are 17 to 22 meters गए. तो हम घेरा रहता है उसका. जैसे हम बोलते हैं ना कि बारिश आती है तो सब कोई नाच उठता है, 5 साल का बच्चा और 80 साल के बुजुर्ग. तो I dance with my costumes also. So I enjoy dancing Sufi classical as well as Bharatanatyam and Kuchipudi. What inspired you to come up with a Sufi classical dance? Because आपने जैसे बताया कि लोग यही आरंगित्रल में आते थे तो यही सोचते थे कि खाना कब होगा, किसी को डांस में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए शायद आपने सूफी क्लासिकल डांस फॉर्म किया. पर ये कुछ स्पेशलिटी बता. सूफी इज अ एटर्नल लव टू गॉड. एंड हमारे भारतवर्ष की जितने भी क्लासिकल डांस है वो बेस्ड ऑन अवर माइथोलॉजी है. सो पहले ये जो क्लासिकल डांस है वो टेम्पल में परफॉर्म होते थे गॉड एंड गॉडेस के लिए. तो बोथ आर बेसिकली इट्स अ क्लासिकल डांस, राइट. एंड सो वो गॉड जो हमारे ईश्वर है, शिव भगवान है, नटराज स्पेशली, एंड देन माता जी देवी स्वरूप, देन गणेशा, and of course Shri Krishna. So it's our classical dance form only. Not Sufi and classical is not different. Sufi is eternal love to God and classical is also representing, it's a prayer to God. So both are same. But Sufi dance and Sufi classical dance are different, right? Yeah. Sufi dance वो अरेबियन कंट्री में ज्यादा होता है, जिसमें वो घेरा वाला डांस जो कॉस्ट्यूम है उससे खाली वो चक्कर ही घूमते हैं. उसमें डांसिंग नहीं होता है, उसमें ज्यादा चक्कर ही रहते हैं. तो सर्कल्स घूमने का. वो एक देखते हैं तो साधना जैसा लगता है, जैसे दे आर डूइंग साधनास, राइट. अपने कॉस्ट्यूम जैसे आपने बताया कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, और आपके जो मेकअप भी मुझे लगता है कि बहुत अलग रहते हैं जब आप मेकअप करके स्टेज पे आते हो, और जो ज्वेलरी आप लोग पहनते हो उसका कोई विशेष इम्पोर्टेंस है क्या? ज्वेलरी का जैसे हम क्लासिकल डांस गुरु शिष्य परंपरा से करते हैं, वैसे भी जो वर्षों से हमारे गुरु और जो जो प्रणाली में वो लोग पहनते हैं वही हम क्लासिकल डांस में पहनते हैं. तो जो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी जो साउथ के होते हैं उनकी गोल्ड पर ज्वेलरी होती है जो कुंदन वाला, और जो ओडिसी है उसमें सिल्वर पहनते हैं. और कथक में नॉर्थ इंडिया से जैसे टीका अलग आता है जो आपने शायद मूवीज में भी देखा होगा, तो उसका थोड़ा अलग रहता है. तो हर एक डांस का अपना हर एक डांस का अपना अपनी आगवी एक भाषा है, जो उनके कॉस्ट्यूम, उनकी ज्वेलरी, उनका मेकअप सब डिफरेंट रहता है. अपनी हेमा मालिनी जो करते हैं वो कौन सा डांस का प्रकार है? हेमा मालिनी भरतनाट्यम भी करते हैं और ओडिसी भी करते हैं, कुचिपुड़ी भी करते हैं. बेसिकली शी इज फ्रॉम साउथ इंडिया, सो she used to perform classical dances.
સાઉથ ઇન્ડિયન મારા ઝૂમ માં પણ ઓટોમેટિક પેલું ઓટોમેશન ઉપર રેકોર્ડિંગ છે. अपने बीच में अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो अनम्यूट हो जाता है. अच्छा, क्लासिकल डांस में फेशियल एक्सप्रेशंस और मुद्राओं का क्या इम्पोर्टेंस है? क्लासिकल डांस में फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे कोई भी डांस सीखो या आप रसोई बनाना सीखो या कोई भी गेम सीखो, तो उसके लिए यू नीड प्रैक्टिस, राइट? तो डांस भी साधना है. यू नीड रियाज रियाज रियाज, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस. आफ्टर प्रैक्टिस, आफ्टर सो मेनी प्रैक्टिसेस, देन योर परफॉर्मेंस इज ओवर. जैसे आप गाना भी सीखते हो, तो जब सीखते हो तब यू आर लिटिल बिट कॉन्शियस कि आपका सुर लगा कि नहीं. ऐसे ही हमारे जब डांस सीखते हैं तो पहले बॉडी मूवमेंट्स आती है, हैंड्स का, पैर का, बॉडी का, वो सिंक्रोनाइज होता है. फिर नेक मूवमेंट आता है. एंड आफ्टर दैट दिस इज द लास्ट थिंग इज एक्सप्रेशन. व्हेन यू एंजॉय योर डांसिंग, यू कैन गिव गुड एक्सप्रेशन. इट्स लाइक दैट. आप रियाज कैसे करते हो? I have my own dancing institute. My students are aged from 10 years to 55 years. So ऐसा है ना कि सबसे बेस्ट टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, तो टीचिंग. तो मैं जैसे सिखाती जाती हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस होती जाती है. और जब शोज होते हैं तब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती है, रिहर्सल्स होते हैं. तो वो हमारा चालू ही रहता है शोज. तो प्रैक्टिस तो चालू ही रहती है. जैसे कभी डांस परफॉर्मेंस के दौरान कोई मेंटल या फिजिकल डिस्ट्रैक्शन आया है? नहीं, मेंटल और फिजिकल डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है. पर या हम मेरे परफॉर्मेंस में सोलो परफॉर्मेंस भी रहते हैं और ग्रुप परफॉर्मेंस भी रहते हैं. आई परफॉर्म विथ माय स्टूडेंट्स आल्सो. तो जो स्टूडेंट्स को भी they are so anxious performing. मैम आज हमारा परफॉर्मेंस, एंड एवरी टाइम I used to create new things and new performance. तो प्रैक्टिस भी इतनी की है, नया क्रिएशन किया है, तो उसका प्रेजेंटेशन के लिए भी थोड़ी एंजाइटी रहती है सबको कि कैसा होगा. अच्छा यहाँ ये लाइटिंग है, अच्छा ऑडियंस आ गया, आवाज नहीं है, अच्छा वो फ्लावरिंग होगा कि नहीं. मीन्स वो सब थोड़ा तो रहता है. एंड आफ्टर शो वी रिलैक्स, वी एंजॉय एंड वी शेयर द मोमेंट्स. एंड जो भी हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि एंट्री के वक्त कोई स्लीप हो जाता है, शायद जो स्लीपर ही हो, तो वो सब रहता है. पर वी एंजॉय दैट मोमेंट्स. कोई ऐसे एक्सपीरियंस है जो आप शेयर कर सकते हो? हाँ, एक बार मेरा संस्कृतोत्सव गांधीनगर में परफॉर्मेंस था और मोदी जी तब चीफ गेस्ट थे और मेरा परफॉर्मेंस था वो गीत गोविंदम पर था. तो गीत गोविंदम में राधा मेन कैरेक्टर रहता है और संस्कृतोत्सव था. तो आई वाज इन बिगिनिंग ऑफ माय डांस, आई वाज डांसिंग एज ए सरस्वती. एंड देन दिस गीत गोविंदम पर था, उसमें राधा जी का रोल था और ऐश्वर्या मजमूदार ने गाया था. बहुत सुंदर गाया था, फुल ऑडियंस था और इतना अच्छा शो रहा कि क्लासिकल डांस कभी वंस मोर नहीं होता, पर वो दिन क्लासिकल डांस भी वंस मोर हुआ. आई वाज एट क्लाउड 9. इतना अच्छा रहा सब, म्यूजिक, डेकोरेशन, लाइटिंग, costumes, everything was so perfect. And after show मोदी जी भी इतना thankful हुए कि बहुत सुंदर रहा. And my students also enjoyed a lot. And then after show when I was going to home, stage पर से उतर रही थी, कोई मेरे shoulder से अथड़ाया and I fell down. तो मेरे नी में हर्ट हुआ. पर तभी तो बहुत उत्साह था, तो फिर घर पे चली आई. पर after 2-3 days मेरा पैर लॉक हो गया. सो MRI करवाया और डॉक्टर ने बोला कि यू हैव टू गो फॉर आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी बिकॉज माय फादर इज डॉक्टर. सो
I have to rush to the hospital and arthroscopy karwayi. That time doctor said, even though surgery went successful, you never can dance again in your life. And that words killed me. I thought, oh my God, I cannot open my eyes. But my one student was a physiotherapist. उसने दिन में 3 बार आती थी कि मैम नहीं, you have to do it again, मैम you can do it, I know nothing will happen. And you know that after 1 month and 20 days I performed Kuchipudi at Central Government opening ceremony, and closing ceremony I performed Sufi classical, and my family came there to see me. Everyone was crying that, what are you doing? Until that day, I performed 51 shows and 21 charity shows. तो ऐसा बोलते हैं कि अगर इंसान जो पढ़ाई करता है ना, तो बोलता है कि मैंने किया, बिजनेस करता है तो मैंने कमाया, पर आर्ट में तो ऐसा ही माना जाता है कि ईश्वर की इच्छा हो इतना ही हम कर सकते हैं. So again, for that I am so thankful to my all gurus, my parents, family, friends and my students. And आप सबका भी इतना ही आभार मानती हूँ, क्योंकि जब भी हम ये बात करते हैं ना, तो सबकी जो आशाएं है, ऐसा बोलते हैं ना कि जो भी हम सोचते हैं वो हमारे साथ होता है, पूरी कायनात साथ देती है. तो जब कैंसर का गुजरात कैंसर सोसाइटी के लिए शो किया था ना, वो भी इतना सक्सेसफुल रहा था. As I said, I did 21 charity shows. So then I felt that पहले ऐसा था कि dance was a passion for me. Now it's a prayer to God for me. So ईश्वर, ये सब ईश्वर ही करवाता है और मैं करती जाती हूँ. So every show I am thinking that maybe this is my last show, but till now God helped me a lot. बहुत बहुत इंस्पायरिंग है आपका पूरा जर्नी. ऐसा कहते हैं कि भगवान चुनता है कि किसको मुझे आर्टिस्ट बनाना है, हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता. और जब आप लोग डांस करते हो तो आप भगवान के बहुत करीब होते हो. आपको कभी ऐसी अनुभूति हुई कभी क्या कि मैं भगवान के बहुत करीब हूँ, या आई एम वेरी नियरेस्ट गॉड राइट नाउ? या हमारे जो गुरुज हैं ना, वो हर बार बोलते हैं कि ईश्वर को जो बहुत प्यारे होते हैं ना, उनको ही आर्ट देते हैं, सबको आर्ट नहीं देते. तो आप जितना भी कर सको उतना चालू रखो, करते जाओ. My so many students are doctor, engineer, interior designer, jewelry designer, students, artist also. पर डॉक्टर की लाइफ बहुत मींस टाइमिंग के बारे में, क्योंकि एक डॉक्टर है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, तो हर रोज के उसके 3-4 ऑपरेशंस रहते, फिर भी शी रश टू क्लास एंड शी डू प्रैक्टिस एंड परफॉर्म आल्सो विथ मी. सो ऐसा है ना कि अगर हम बहुत मेहनत करते हैं तो जो इच्छते हैं वो ईश्वर हमें हेल्प करता ही है, और वो कुछ भी तरीके से हम कर सकते हैं. पर सब में मेहनत तो करनी ही पड़ती है. ऐसा नहीं है कि विदाउट एफर्ट यू कैन गेट एवरीथिंग. आपको गॉड की अनुभूति हुई कोई भी डांस परफॉर्मेंस के दौरान? मेरा ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव में परफॉर्मेंस था, और मेरे अगले साल हेमा मालिनी जी ने ओपनिंग सेरेमनी किया था, और वो साल मुझे ओपनिंग सेरेमनी करना था एज ए कृष्णमयी. तो मेरे बाद ग्रेसी सिंह का परफॉर्मेंस था. शी सेड आई एम बॉलीवुड एक्ट्रेस, लेट मी डू ओपनिंग सेरेमनी. Then committee said no, we will give opening ceremony to Krishnamayi only. Then we went to Kurukshetra. भगवान का इतना बड़ा, ये जो कृष्ण भगवान है ना, उनका इतना बड़ा, मे बी मोर देन 25 फीट लंबा
स्टैच्यू सेंटर ऑफ जो कुरुक्षेत्र शहर है ना उसमें था, और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ब्रह्म सरोवर पर था, क्योंकि इंटरनेशनल गीता महोत्सव इज जो कृष्ण भगवान ने सबसे पहले गीता का चैंटिंग किया था ब्रह्म सरोवर पर, तो वहाँ परफॉर्मेंस होता है, पूरे वर्ल्ड में से आते हैं सब आर्टिस्ट। सो मेरा ओपनिंग था और क्लोजिंग कैलाश खेर जी का था। तो जब हम परफॉर्म करते थे, कृष्णमयी इज सेवन लेडी कैरेक्टर जो पूरी लाइफ कृष्णमयी बन के जिए। तो सबसे पहले देवकी जी और यशोदा जी, टू मदर्स, देन गोपीज, देन राधा जी, देन उनकी जो रानियां है उसमें से रुक्मिणी जी और सत्यभामा, एंड देन सखा वो द्रौपदी, एंड लास्ट में मीरा। तो जो द्रौपदी का जो कैरेक्टर है ना वो सखा है, पर वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि द्रौपदी बहुत सखा, पर उनकी वजह से भगवान ने कितने सारे दुख सहन करे, क्योंकि उनकी वजह से ही उनको दोष लगा कि तुम्हारा पूरा वंश नष्ट होगा, और भगवान कृष्ण भगवान हेल्प हर अ लॉट। तो ये जो कृष्णमयी का जो क्रिएशन किया ना वो मेरी पूरी जर्नी रही है। 6-7 सालों से मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ाई की, फिर हमने स्टूडियो रेंट पर किया था, तो 17 म्यूजिशियन फ्रॉम ऑल ओवर गुजरात एंड बेस्ट म्यूजिशियन नीरज पाठक जी, नीरज परीख के पास से मैंने जो म्यूजिक डायरेक्शन करवाया था। तो जब द्रौपदी का था ना तब हमने लाइट एंड शेडो डांस किया था। तो ये कृष्ण भगवान को वहां चौराहे पर देखा, और देन वी वेंट टू ब्रह्म सरोवर। तो उसमें ऐसा है कि जो लाइट एंड शेडो है तो शेडो डांस फर्स्ट होता है, एंड देन लाइट होती है, तो ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान आए यहाँ पर। तो मेरा वो सोलो परफॉर्मेंस है, एंड देन आई ran to the corner of stage बहुत बड़ा रहता है, then I felt that yes, Krishna is there, and the performance went very well, everyone appreciated। पर वो जो ग्लिम्स जो हमें लगता है ना, जैसे गुरु शिष्य परंपरा में मोडेरा परफॉर्म किया था मैंने एक बार, और 2001 में हमारे गुरु राधा मेनन जी के साथ मोडेरा सन टेम्पल परफॉर्म किया था। हमारे भारतवर्ष में 3 सन टेम्पल्स है, एक मोडेरा सन टेम्पल, कोणार्क एंड खजुरा। तो जहाँ आपने आपके गुरु के साथ परफॉर्म किया है तो ही वहां आपको परफॉर्मेंस मिलता है। तो 2001 में राधा मेनन जी के साथ परफॉर्म किया था, एंड 2013 आई गॉट माय परफॉर्मेंस। एंड अगर आप कुचिपुड़ी डांस लिखते हैं ना गूगल पे, तो उसमें लिखा है, सबसे पहले आता है कि एवरी कुचिपुड़ी डांसर हैव अ ड्रीम टू परफॉर्म once in their dance career भामा कलापम, जो सत्यभामा का जो पूरा है, भामा कलापम once in their dance career। तो सत्यभामा है वो बहुत बहुत सुंदर कैरेक्टर है, और जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब भी गुरु सिखाते हैं हमको। और ऐसा कहा जाता है कि सत्यभामा के बाल बहुत सुंदर थे, और भगवान कृष्ण को वो बोलते हैं कि I have this much long and beautiful hair and you are not doing anything। So वो टाइम कृष्ण भगवान पूरा पारिजातक का जो ट्री है वो पृथ्वी पर ले आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पारिजातक का जो ट्री है वो बिकॉज ऑफ सत्यभामा पृथ्वी पर आया है। तो वो डांस के वक्त पूरा चोटी, लंबा चोटी पकड़ के ही डांस करती है, very graceful and proud that I have this much beautiful and long hair and I am Krishna's wife। तो सत्यभामा बोलती है कृष्णा को कि I don't want to share you with anyone। Whenever then Krishna says कि तू जब भी देखेगी
मुझे सामने पाएगी. आई विल नॉट गो एनीवेयर. तुम्हारे पास से मैं कहीं नहीं जाऊंगा. तो वो डांस में भी ऐसा ही आता है कि वो बोलती है कि मदना मोहना. तो जो भगवान, आप कहीं पर आप इतने मोहना है कि आपकी एब्सेंस में मेरा श्वास बंद हो जाता है. तो वो दौड़ती है कि देखो सखी, अभी कृष्णा कहीं नहीं दिखता है. ही इज लायर. मुझे बोलता है कि तुम्हारे पास रहूंगा पर नहीं है अभी. तो मेरा पूरा स्टेज से ऐसे दौड़ के वो कॉर्नर में जाने का था. तो तब मेरे गुरु खड़े हो गए और वहां देखा कि हाँ कृष्णा है. तो तब गुरु बोले, मेरे खड़े हो गए कि इसने कृष्णा को देखा. एंड शी सेड कि अगर सत्यभामा करती है ना तो कृष्णा बहुत आगे लाएगा. तो उसके बाद आई क्रिएट कृष्णमयी एंड परफॉर्म. अभी तक बहुत सारे शोज किए. खाली कृष्णमयी के ही अभी तक 23 शोज किए हैं. तो बोलते हैं ना कि भगवान का एहसास होता है कि आपके आसपास ही है. तो जब कृष्णमयी परफॉर्म करते हैं ना तो नॉट ओनली मी, माय स्टूडेंट्स आल्सो फेल्ट लाइक दैट कि कहीं पर भी हम कृष्णमयी बन के जिए होंगे शायद हिस्ट्री में. तो वो इतना इन्वॉल्वमेंट रहता है. क्योंकि जब हम गोपी का क्रिएशन कर रहे थे ना, तब हमने देखा कि बहुत सारी गोपियाज होती है. तो इसमें क्या रहा एक बार कि ऐसा पढ़ने में आया था कि कृष्ण भगवान के जो बहुत क्लोज है वो उद्धव जी थे. तो उद्धव जी और कृष्ण भगवान दोनों सेम दिखते थे. खाली भगवान का श्याम रंग था और उद्धव जी फेयर थे. और उनके कद काठी सब एक जैसा ही था. तो वो लोग मथुरा में नदी में नहा रहे थे और भगवान ने देखा कि एक कमल का फूल था, थोड़ा मुरझाया हुआ और थोड़ा खिला हुआ. तो वो देख के भगवान बेहोश हो गए. तो फिर बाहर लाए और बोला, कान्हा कान्हा क्या हुआ. तो कृष्ण भगवान आंखें खोल के बोलते हैं कि उद्धव, ये देख के मुझे राधा जी की याद आ गई. तो हम बोलते हैं ना कि तू इतना बड़ा नरेश होके ऐसी बातें करता है, तुमको शोभती है ऐसी बातें. तब उद्धव जी को बोलते हैं कि तुम एक बार वृंदावन जाओ, राधा को मिलके आओ और माता जी को मिलके आओ, फिर मुझे बोलना. तो उद्धव जी रथ लेके वृंदावन जाते हैं. शायद आपने कोई जो पिछवाई का पेंटिंग आता है ना उसमें देखा होगा कि उद्धव जी का रथ जाता है वृंदावन में. तो उसके पीछे बहुत सारी गाय और गोपियां दौड़ती है. और जैसे रथ खड़ा रहता है ना तो उनको देख के ऐसे वहां ही गोपियां गिर जाती है. ये तो कृष्णा नहीं है, माय गॉड, ये तो कृष्णा नहीं है, दिखता है कृष्णा जैसा पर ये तो अलग है. और गाय भी गिर जाती है. तब भी हमने जो क्रिएशन किया है वो पूरा म्यूजिक पर है कि सबसे पहले जो जो फर्स्ट टाइप की जो गोपीज है वो इतनी मृदु होती है, उसमें राग पुरंदनेशी लिया है कि अरे कृष्णा, हम सब आपको इतना मिस करते हैं और बहुत प्यार करते हैं. आपके सिवा तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे जी पाएंगे. फिर जो दूसरे टाइप की गोपी है वो थोड़ी लविंग भी है और थोड़ी प्रैक्टिकल है. हमें पता है कि कृष्णा जरूर आएंगे, आई नो, वो हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते. फिर तीसरी टाइप की जो गोपी है वो बोलती है कि हम तो कब से राह देख रहे हैं, देखो हमें लगता है कहीं ये जो एनवायरमेंट है ना उसमें भी खुशबू आती है, कृष्णा तो आएगा ही. और जो चौथी टाइप की गोपी है ना, दे आर लाइक लॉयर्स. इतना गुस्से होती है कि काले का तो विश्वास ही नहीं करने का. हमारे गुजराती में है ना कि श्याम रंग समीपे न जाओ एम કે મારો જ વાંક છે કે હું આના પર વિશ્વાસ કર્યો પણ કાળાનો તો વિશ્વાસ જ ના થાય. तो जो जो लास्ट वाला डांस है ना उसमें म्यूजिक इतना फास्ट जाता है कि हमारे उसमें 32 चक्कर्स है. तो वो पूरा म्यूजिकल है. तो
इतना अच्छा रहता है, everyone enjoyed it, and we also as a dancer, as a performer, as a choreographer. So with dance I have to create all the time new things. तो उसके लिए नया क्रिएशन करो, नया सोचो, तो वो बहुत आनंद देता है, और that makes you young by heart, memorize everything, क्योंकि performance is every time it's like a challenge. just सिखाया और छोड़ दिया ऐसा नहीं है, परफॉर्मर के लिए it's every time like exam, right? anything can happen to you. तो पर मेरी जर्नी डांस के साथ बहुत सुंदर रही है, and I really enjoyed a lot in my life, and I am thankful to my family. Once एक बार मेरा AMML लेक्चर था, दूसरे भी सब थे उसमें, तो वुमेन्स डे पर तो कोई ऐसा बोलता है कि आई एम हियर बिकॉज ऑफ माय मदर, कोई बोलता है कि बिकॉज ऑफ माय मदर इन लॉ, माय सिस्टर, माय मासी, एंड आई सेड आई एम हियर only because of three men in my life: my father, my husband, and my son. They support me so much like anything, and I'm so thankful to everyone. जैसे हम नमस्कार करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले धरती माता को नमस्कार करते हैं, एंड सॉरी भी बोलते हैं, टू बीट अवर लेग्स ऑन हर. देन एनवायरमेंट, सभा अगर बाहर करते हैं तो पशु पक्षियां, फिर ट्रीज होते हैं, फिर सभा जितने भी लोग हमें देखते हैं उनको, और वी आर सो थैंकफुल टू अवर गुरुज, बिकॉज ये आर्ट हमें हमारे गुरु के पास से सीखे हैं. भले हम उसमें नए क्रिएशन करते जाते हैं, पर गुरु का आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ रहता है, राइट? एंड थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ ग्रेट आर्ट. तो वो जो हमारा जो इनर का एक पूरा ऑरा बनता है एनवायरमेंट में, वो पॉजिटिविटी का ऑरा बनता है, एंड दैट मेक्स अस going on and on, new creation every time. So again, I'm thankful to my gurus and God again for that. And Leena બેન, તમને પણ કે આટલું સરસ મને સાંભળવા બદલ, બધા viewers ને પણ કે તમે આટલો સરસ સપોર્ટ કરો છો. थैंक यू, थैंक यू. તમે એટલું બધું ग्रेटिट्यूड शो करो છો, पर आपको पता नहीं है कि आपने अभी जो बात किया, बात करते करते आपके जो जेस्चर्स और हैंड मूवमेंट्स और थोड़ी से एक्सप्रेशन ने हमको ऐसे फील कराया कि लाइक वी आर वाचिंग यू एज अ डांसर. आप जैसे डांस कर अभी बैठे बैठे इतना अच्छा सा अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि अगर स्टेज पे हम आपको देखते तो it should be always wow. क्या बात है. मैं जो आपको जो बोलने जा रही थी ना कि ये जो मेरा एल्बम है शंकर महादेव जी के साथ हिंदुस्तान मेरी जान, उसमें हमारा एक शूट ऐसा था कि आई हैव टू वर्क अंडर द आई हैव टू डांस अंडर अवर फ्लैग, और इतना एक्साइटमेंट था, और तब भी बारिश आई, तो मेरा कॉस्ट्यूम था ना वो 30 मीटर का था. मैं ऐसे करूं ना तो मेरे सिर के ऊपर पूरा कॉस्ट्यूम आ जाए, इतना गहरा था उसका, और नीचे गीला भी था, और ऊपर सब और हमें डांस करना था, चक्कर्स लेने थे. इट वाज अ चैलेंज, बट आई एंजॉयड अ लॉट, एंड आई फील प्राउड कि चलो इंडिया के फ्लैग के नीचे हम डांस कर रहे हैं. अरे ये अपॉर्चुनिटी तो कितनी ग्रेट है कि हम फ्लैग के नीचे डांस कर रहे हैं. पर ऐसा होता है कि डिफिकल्टीज भी आती है, क्योंकि वो टाइम इतना पानी जैसा था, तो एक डांसर गिर भी गई, और फिर से शूट करो तो रीटेक इतने लेने पड़ते हैं, तो एवरी टाइम इट्स अ चैलेंज. I understand. Before performance, I think आप लोगों को on an average कितनी बार प्रैक्टिस करनी होती होगी?
हाँ, बहुत बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इट्स लाइक अ रियाज, पर वो तो करनी ही पड़ती है, देन ओनली हम परफॉर्मेंस। पर रियाज प्रैक्टिस इतनी बार की होती है ना, जब परफॉर्मेंस करते हैं ना तो लगता है ओ माय गॉड खत्म हो गया, कितनी देर में खत्म हो गया। वो बोलते हैं ना 3 घंटे के एग्जाम के लिए पूरा साल पढ़ाई करते हैं, वैसी वाली बात हो सही जाती में है। सही में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, लाइफ किसी की इजी नहीं होती, चैलेंजेस हर कोई की लाइफ में आता है। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस ये जर्नी के दौरान आए होंगे, और आपने इंडिया और अब्रॉड में बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। कुछ ऐसा कोई चैलेंज आया हो, या कुछ ऐसा कोई घटना घटी हो, या कुछ ऐसा कोई प्रशंसक आके आपको बहुत अच्छे से फीडबैक देके गया हो, प्रशंसा करके गया हो, या स्टैंडिंग ओवेशन मिला हो, ऐसा कोई इंसिडेंट है इंडिया का या बाहर का जो आपको अभी भी याद रह गया हो? हाँ, यूएस में जब परफॉर्म किया था तब मैंने सूफी क्लासिकल किया था। तो वो उसमें हमारा एक डांस था, वो इतना सुंदर था, मुझे भी बहुत पसंद था। 3 बार वंस मोर हुआ था, एंड देन आई सेड नो, आई विल नॉट डू इट अगेन। क्योंकि पीछे हमारे बाद भी परफॉर्मर थे एंड दे वर शाउटिंग हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। और यहाँ जब मैंने सबसे पहले कृष्णमयी का जो फर्स्ट शो था, उसमें जो हम राधा जी करते थे, राधा जी में 3 पार्ट में करते हैं। पहले रसिया करते हैं, फिर राधा गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल आईज, तो उसमें मृगनयनी करते हैं, और लास्ट में माई श्याम 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 रटत श्याम श्याम भई। તો શ્યામા શ્યામ એટલે રાધાને એટલી ઘેલી થઈ જાય છે કે પોતે જ શ્યામ થઈ જાય છે, शी डोंट नो। तो उसमें हमारे जो डांस था कि पहले रसिया किया, फिर मृगनयनी और ये, तो जब श्याम 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 श्यामा में मेरे 36 चक्कर्स रहते हैं, वो इतना सुंदर लगता था कि पूरे डांस में मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। और जो लास्ट जो हम करते हैं मीरा, माई सावरे रंग राची, वो भी इतना सुंदर है कि सब स्टूडेंट, जितने भी मेरे स्टूडेंट है वो फिनाले है। तो उसमें हम 32 केजी पेटल्स लास्ट में गिरती है, जब फिनाले चलता है ना तब इतना सुंदर लगता था, और दुपट्टा के साथ डांस करते हैं। तो उसमें भी हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, और इतने सारे लोग कि भी हमें रियल में भी फेल्ट कि जैसे पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया। तो वी एंजॉयड अ लॉट। और एक बार लग्नोत्सव किया था, उसमें भी ऐसा था, क्योंकि कॉम्परर पर बहुत आधार रहता है। मेरे जो कॉम्परर थे तुषार जोशी, उन्होंने इतना अच्छा समा बांधा था, तो एवरीवन फेल्ट दैट दे आर अ पार्ट ऑफ दिस डांस ड्रामा। तो वो बहुत मायने रखता है कि हाउ वी रिप्रेजेंट अवर डांस with costumes, lighting, comparing, everything. मुझे लगता है आपके पीछे में एक फ्रेम देख रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल है। उसमें जो घेरा दिख रहा है वो क्या ये सूफी डांस, क्लासिकल डांस का कॉस्ट्यूम है? ये माधुरी का है। ये हमने राजस्थानी फोक बैले किया था 1998 में। तो ये मेरा कॉस्ट्यूम 25 मीटर का घेरा रहता था, और मेरे स्टूडेंट का 15 मीटर्स का। और एक आर्टिस्ट आए थे, माय हस्बैंड इज एन आर्किटेक्ट, तो उनके ही फ्रेंड थे, एंड देन ही गिफ्टेड दिस टू मी, and this is a madhurika, my jewelry, and I feel so proud. I always tell my son कि हमारे घर में 2 ज्वेलरी है, एक ये माधुरी का, और दूसरा मेरे पास तानपुरा है जो मेरे गुरु ने दिया है, जो उनके गुरु से मिला है उनको। एंड उसमें पूरा हाथी दांत का वर्क किया है। अगर हम सितार बजाते हैं या गिटार बजाते हैं तो सितार वगाड़ी, गिटार वगाड़ी, और तानपुरा अगर बजाते हैं उसको बोलते हैं कि तानपुरो छेड़ियो एम।
અને એટલું મીઠું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. સો તમને પણ સાંભળીને ખૂબ આનંદ થાય. Yeah, you are really blessed કે તમને ગુરુના આપણે એકચ્યુઅલી ગુરુને દક્ષિણા આપતા હોય પણ ગુરુએ તમને ગિફ્ટ્સ કરી છે અને મેમોરેબલ ગિફ્ટ છે. સો ધેટ્સ રિયલી ફેન્ટાસ્ટિક. અને આઈ થિંક તમારી પાછળ હું ઘણી બધી આઈ કેન સી સો મેની ટ્રોફીઝ બિહાઇન્ડ યુ. તો वो शायद सभी आपने એવોર્ડ્સ છે. એવોર્ડ્સ બહુ યાદ નથી રહેતા પણ હા, this is a recognition in society. So art need a performance and recognition. अगर कोई पेंटिंग करता है तो उनको भी उनका एक शो करना है, म्यूजिक करते हैं तो भी करना है. This is a one kind of inspiration. हमारे समाज के लिए भी बहुत मायने रखता है कि डांस इज नॉट ओनली डांस, इट्स अवर इंडियन कल्चर what we are carrying, right? तो एक हमारे संस्कार है जो सबसे अलग पड़ते हैं. ऐसा नहीं है कि चलो ऐसा किया और ताली बजाई और डांस सीख गए. उसके लिए बहुत साधना करती है. इसलिए साधना क्लासिकल डांस को इसलिए साधना बोलते हैं. क्लासिकल म्यूजिक, कोई भी आर्ट फॉर्म, तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है. बिल्कुल बिल्कुल. मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि डांस ने आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाया होगा, तो आप हमारी ये जनरेशन को क्या सीख देना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूंगी कि आप जो भी करो वो बहुत दिल से करो. आप आर्ट करो या स्पोर्ट्स करो या म्यूजिक करो, कुछ भी सीखो. हमें रोटी भी बनानी है तो एक बार में तो नहीं गोल हो जाती ना. We have to do practice and practice, right? If you want to give maths examination तो कितना सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है. तो कुछ भी करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ता है, right? And then એવું કહે છે ને કે સિદ્ધિ જેને સિદ્ધિ જેને વળે કે જે પરસેવે ના એમ, રાઈટ? એટલે મહેનત તો કરવી જ પડે એમ. અને યુ એન્જોય दैट पाथ, क्योंकि खाली मेहनत करने से या मम्मी पापा बोलते हैं इसलिए पढ़ाई करनी पड़ती है, कोई प्रेशराइज करते हैं इसलिए मुझे स्पोर्ट्स करनी पड़ती है, मेरी मदर को बहुत अच्छा लगता है इसलिए डांस करना पड़ता है, ऐसा नहीं. मुझे करना है. आई वॉन्ट टू एंजॉय दैट जर्नी. क्योंकि जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है. एंड रिजल्ट मिले या ना मिले, मैं बोलती हूँ ना कि प्रैक्टिस में ही इतनी मजा आती है. परफॉर्मेंस तो 2 मिनट में जैसे खत्म हो गया. तो जो जर्नी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. So we should enjoy our each and every moment of life. Whatever we are doing, we should do by heart and do hard work. God will help you always. मैं समझती हूँ God आपकी जर्नी से जो मैं अभी तक समझ पाई कि एक तो डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में. अगर कुछ सीखते हैं तो हार्ड वर्क होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और परसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, तब जाके कुछ निखार आता है बातों में, है ना. सो बीनाबेन, थैंक यू सो मच. मैं अब बहुत एक्साइटेड हूँ आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए. एंड हम पूरे लोगों की तरफ से गॉड ब्लेस यू. आप बहुत ऊंचाइयों पे और ऊंचाइयों पे जाए, हमारा देश का नाम रोशन करे. और आपके औरा में आप भगवान से इतना करीब हो कि आपके औरा में हम आके हम भी कुछ एहसास कर पाए कि हम भी भगवान से बहुत नजदीक है. थैंक यू सो मच वंस अगेन. नाउ इट्स ओपन फोरम टू आस्क द क्वेश्चन. किसी के दिमाग में अगर कोई सवाल है पूछने के लिए तो पूछ सकते हैं. You can raise your hand and unmute yourself. Actually, आपका जो आज का जो टॉपिक है इट्स वो सबके लिए इतना सबका नॉलेज उसमें इतना नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़े कम आने के चांसेस है. पर फिर भी अगर कोई पूछना चाहे.
कोई अगर सोच के पूछता है तब तक बीना बेन, विथ योर परमिशन मैं अपने नेक्स्ट सेशन का फ्लायर रिलीज करना चाहूंगी। थैंक यू। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेशन है सुखनु साचू सरनामू। हम सभी खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। कोई खा के हैप्पी रहता है, कोई घूम के हैप्पी रहता है, कोई सो के हैप्पी रहता है, बीना बेन जैसे लोग डांस करके हैप्पी रहते हैं। सबकी भाषा अलग अलग है हैप्पी रहने की। पर एक डॉक्टर जो सबकी जिंदगी को बहुत नजदीक से जानते हैं, अंदर बाहर की पूरी बातें जानते हैं, सुख दुख को जानते हैं, ऐसे पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर शाह हमारे बीच में आएंगे और बात करेंगे कि सही में सुखनु साचू सरनामू शू छे, व्हाट इज द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो अगले सेशन में पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर शाह जो कि सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट है। दोस्तों, आप मानोगे नहीं, अगर न्यूरोलॉजी की आपको जरूरत पड़े और उनका अगर अपॉइंटमेंट आपको चाहिए तो 1 महीने से पहले बिल्कुल नहीं मिल सकता, उतनी बिजी एंड सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट है। उन्होंने भी बीना बेन की तरह मल्टीपल प्रेस्टिजियस अवार्ड लिए हैं, टीचर है, राइटर है, म्यूजिशियन है, ओरेटर है, साइंटिस्ट है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कई बार कि भगवान एक ही बंदे के अंदर इतनी सारी खूबियां कैसे भर देता है। पर ऐसे बखूबी पर्सनालिटी हमारे बीच में नेक्स्ट सेशन में आने वाले हैं और बात करेंगे हैप्पीनेस पे। मैं समझ रही हूँ उनको सुनना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा। डोंट मिस टू लिसन हिम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। डू ज्वाइन इन नेक्स्ट सेशन। और लास्ट में अगर एक बार और पूछना चाहूंगी, किसी को सवाल है बीना बेन के लिए तो जरूर पूछ सकते हैं। बीना बेन, मैंने इतनी सारी क्लास में है लीना मैन। हाँ जी, लीना मैन, मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन ली है ना कि कुछ बाकी ही नहीं रहता है। कुछ बाकी नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और एक सवाल आया है कि आपका क्लासेस कहाँ पे है, और उसके साथ मैं जोड़ देना चाहूंगी कि किस उम्र तक, बड़े से बड़े किस उम्र तक के लोग ये सीख सकते हैं। मेरे स्टूडेंट 10 साल से तो 55 ईयर ओल्ड तक एज के मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, आते हैं अभी भी। और आई लिव्ड एट सिंधु भवन रोड, तो वहाँ ही मेरा घर है और नेट पार्क में वहाँ ही मेरे क्लासेस चलते हैं। आपकी परमिशन हो और आप अगर कहना चाहो तो यू कैन शेयर योर नंबर, तो कोई अगर इंटरेस्टेड है तो वो जरूर आपके क्लास में आए। श्योर। तो आपका नंबर चैट में या फिर बोल के दे सकते। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, तो आर्ट के लिए तो दिल में भूख होनी चाहिए, मन में भूख होनी चाहिए। तो आप किसी भी एज पे डांस सीख सकते हो, पर उसके लिए थोड़ा फिजिकली भी कंफर्टेबल रहना पड़ता है क्योंकि ये क्लासिकल डांस है। तो पर मैंने सुना है एक 75 इयर्स के लेडी ने भी इंक्वायरी की थी आपके यहाँ कि मैं डांस सीखने आऊँ क्या। अगर वो आ सकते तो हम में तो कोई आ ही सकता है। नहीं, पर वो जो 75 ईयर ओल्ड ने जो इंक्वायरी की थी, मैंने हाथ जोड़ के उनको बोला था कि आप डांस को देखो और एंजॉय करो, और आपके जो बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनको इंस्पायर करो। अच्छा, कृष्णमयी डांस करती हो तो ऐसा होता है ना, अगर कि बीच में कृष्ण को सिर्फ खड़ा किया जाए और अगल बगल में गोपियां घूमती रहे। नहीं, ऐसा जैसे कोई आते हैं तो उनको कृष्ण बना के खड़ा रखे और आप लोग घूमते रहो। नहीं। हमारा पूरा डिजाइन किया हुआ है परफॉर्मेंस, तो हम ऐसा नहीं करते क्योंकि वो तो गरबा और सब में होता है, और दिस इज अ क्लासिकल डांस, तो उसको एक अच्छा सा कर दिया है। तो बिल्कुल, इसमें बहुत सालों के साथ और 5 क्लासिकल डांस का मर्जिंग है, तो जो वो स्टाइल में सबसे स्टाइलिश है, जो बहुत सुंदर दिखता है, वही सब आता है उसमें। तो इसलिए इट्स लिटिल डिफिकल्ट एंड मोर ग्रेसफुल डांस। I understand. So once again, Binabin, thank you so much from the bottom of my heart. It was fantastic listening you, और डांस के बारे में बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी।
क्योंकि हम फॉर द लेमन डांस इज लाइक अ डांस, हम अंदर बाहर की कोई भी बात नहीं जानते। और बिल्कुल आपने सही बताया कि दोस्त के बेटे या बेटियां कुछ करती हैं और हमें बुलाते तो हम वाकई में जाके समझ नहीं पाते, इसलिए कई बार थोड़े से बोर भी हो जाते हैं। पर अगर समझ के साथ देखते हैं तो कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, तो अब हमको काफी सारा ध्यान भी रहेगा कि इसमें ये सब होता है। तो अगर नॉलेज होता है तो देखने में और थोड़ा मजा आता है। Thank you so much, Binaben. Thank you Thank you everyone so for much. sparing your valuable time, and thank you, Binaben, for sharing your opinion and views and all the information about Sufi classical dance. Thank you everyone. See you all on next Saturday. आज मैं यहाँ पे कई नए लोगों को देख रही हूँ। ये जर्नी लेट्स ग्रो टुगेदर की सिंस फर्स्ट लॉकडाउन से चल रही है एंड अनइंटरप्टेड आज 96th एपिसोड हुआ है। 108 एपिसोड पे ये जर्नी क्लोज हो रही है। और जिन लोगों को भी अगर जुड़ना है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आप मुझे सिर्फ मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम नंबर भेजिए, मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ दूंगी। और बाकी के बहुत सारे जो एपिसोड अभी बच गए हैं वो आप जरूर अटेंड कर सकते हैं। माई नंबर इज 9925035920। I am Lina Doshi. Once again, I'm repeating my number 9925035920, Lina Doshi. You can send me a message and आप मेरे ग्रुप के साथ जरूर जुड़ सकते हैं और सभी प्रोग्राम्स आप अटेंड कर सकते हो। गैलेक्सी 820 ने हैंड रेज किया है। सर, यू वांट टू आस्क समथिंग? Sir, you are muted. Unmute yourself. You want to ask, or it is by mistake? Sir, you want to ask something, or it is by mistake? I think it is by mistake. So see you all in next Saturday. Thank you very much. Thank you very It much, is no everyone. time. Lina, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. God bless Thank you. everyone. Thank you. Thank you so much.